Hello students, welcome to this video. Students, this video covers the second method to find the coefficient of correlation by Spearman rank method. Okay. Now, the first two slides are talk about the general terms or the basic information about the Spearman rank method, and later on we are calculating and finding out the coefficient of correlation with the Spearman rank method. Okay, so let's start with the some basic information. Spearman rank correlation method has been developed by Professor Edward Spearman in 1904. Now, under this method, what we have to do? The ranks are assigned to all values of both variables, and correlation coefficient is computed on the basis of ranks assigned rather than original observation. Okay, what does it mean? It means that already whatever the values we actually have with us to find the coefficient of correlation, the ranks are assigned to all that values. Okay, all that values. किसे ये असाइन किया गया है values या फिर rank किसे असाइन किया गया है? Both variables and correlation. Variables and correlation, that is what the variables we have and what the correlation of that values to the variables has. तो उस correlation को भी ranks बता दिए हैं या फिर assign किए गए हैं. Now on that basis we can find the coefficient, we can compute the coefficient of rank assign rather than original observation. इसका मतलब हम स्पीयरमैन रैंक मेथड में रैंक का इस्तेमाल करने वाले हैं, ना कि ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन का. ओके, नाउ देयर आर थ्री केसेस इन द स्पीयरमैन रैंक मेथड. फर्स्ट वन, when the ranks are given. Second one, when the ranks are not given. And third, when ranks are given but the repeated sounds. Okay, that means there are some ranks which are repeating in nature. ओके, सो ये थर्ड जो केस है, ये थर्ड केस इस वीडियो में नहीं है. हम लोग फर्स्ट टू केसेस पर ही ज्यादातर ध्यान देंगे, दैट इज रैंक्स व्हेन द रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन द रैंक्स आर नॉट गिवन. ओके, नाउ लेट्स फाइंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. Such as assign ranks to the items of both variables if actual observations are given either in ascending or descending order. When ranks are not given, ranks जब दिए नहीं गए हैं, तब हमें जो values हमारे पास है, जो observation हमारे पास है, वो उन values को हमें rank assign करने हैं. Okay, the first step to finding out the coefficient of correlation with the Spearman ranking method when the ranks are not given. तो first step क्या है हमारा? Assign the ranks to the items, that is variables and the correlations. Okay, variables and the correlation. तो ये जो actual observation हमारे पास दिए गए होंगे उसमें ranks नहीं दी गई है, तो हमें वो ranks देनी है. कैसी देनी है? Either it should be on a ascending order or descending order. Ascending order or descending order. So rank 1 may be given to the largest or the smallest item, that is it will start from R1, R2, R3, R4. ये जो है ये हमारा rank है, ranking method होगा. Okay, now they calculate difference between R1 and R2. हमारे पास R1, R2, R3, that means जनरली हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमेशा ही दो कॉलम्स में होंगे, तो हम एक को R1 देंगे और एक को R2, मतलब R1 एक कॉलम रहेगा और R2 दूसरा कॉलम रहेगा. फिर हमें उस R1 और R2 का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, एंड दैट द कॉलम डिनोट विल the column denote with D. Okay, now in the third step we have to make square of that column D and denote the column D square. और उसके बाद में उसका हम लोग निकालेंगे समीशन. किसका? डी स्क्वायर कॉलम का. ओके, एंड ओनली दिस डी स्क्वायर कॉलम का समीशन ही हमें हमारे वैल्यूज में लेना है, जो कैलकुलेट करके लेना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सारा हमारे सामने होगा. फाइन. नाउ व्हाट द फॉर्मूलाज आर बीन यूज्ड टू फाइंड the Spearman rank, to find the coefficient of correlation by Spearman rank method when the ranks are not
given. The very first formula is R is equal to 1 minus 6 into summation d square upon n into bracket n square minus 1, or else we can use this formula also, that is R is equal to 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n, whereas R is the rank of coefficient of correlation, D is a difference between ranks, and n is a number of pairs. Number of pair, that is R1 R2 का जो relationship है, that is a one pair. Okay, तो इसका जो pair है वो pair n में denote होगा. Now when the ranks are given, जब हमारे पास ranks होते हैं तब सिंपल क्या करना है, रैंक फाइंड आउट तो करने की जरूरत नहीं है, जो रैंक्स हमारे पास है उसी रैंक्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसका डिफरेंस निकालेंगे, डी कॉलम के साथ उसको फाइनल हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो डी कॉलम में आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, टू मेक द स्क्वायर ऑफ दैट डी कॉलम, जो हम डी स्क्वायर के नाम से डिनोट करेंगे. फाइन, एंड द फॉर्मूला फॉर अस 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n. Okay, now on that basis we can go to solve a problem when the ranks are not given. फाइन, हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस है, दो कॉलम से दो ऑब्जर्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है x एंड y. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन. x कॉलम में हमारे पास इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं और y कॉलम में हमारे पास इतने सारे ऑब्जर्वेशंस हैं. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दीज ऑब्जर्वेशन इनटू द रैंक एंड उसका डिफरेंस और उसका डी स्क्वायर. नाउ इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और टेबुलेशन इसका कैसा बनेगा, इस तरह से. ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा y. ओके, एंड दीज आर द observation in first variable, these are the observation for the second variable. Now ascending और descending order में इसका सबसे highest number कौन सा है, इसका highest number x कॉलम में, x कॉलम में जो observation है उसका highest number कौन सा है, 144. so करके इस 144 को हम लोगों ने highest rank denote करी, that is 9. Okay, I hope you guys understand. हम लोगों को जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस कॉलम में बताए गए हैं उन्हें शफल नहीं करना है. We have to just give the ranks or keep the position of that variable or of that observation as it is. Okay, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है कॉलम में जिस नंबर पे वो आ रहे हैं उसी नंबर पे वो आएंगे, लेकिन उसका रैंक हम लोगों को बताना है. फाइन, उसकी पोजीशन चेंज किए बिना. सो 144 ये ऑब्जर्वेशन अगर थर्ड रैंक पे आ रहा है, सॉरी थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो हमारा हाईएस्ट जो रैंक होगा वो भी थर्ड नंबर पे आएगा. उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह इस तरह से हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना है, शफल नहीं करना है. फाइन. ओके, नाउ व्हिच वन इज आवर लोएस्ट नंबर इन ऑब्जर्वेशन, 60. ओके, सो 60 को क्या किया हम लोगों ने, स्मॉलेस्ट रैंक बता दी, इन दैट इज 1. सेम तरीका हम लोगों को सेम तरीका अपनाना है जब हम लोग y कॉलम के ऑब्जर्वेशन को रैंकिंग में चेंज करेंगे. किस तरह से होगा वो, ओके, कैसे होगा इसका, अगर हम लोग देखेंगे y कॉलम में अगर देखेंगे तो हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 156 है, जिसको हम लोगों ने रैंक 9 बताया है. Why it is 9? Because all the pair, मतलब ये जो pairs है, ये pairs कितने हैं, exactly कितने observations हमें मिले हैं, number of observations या number of pairs कितने हैं, 9 है. तो highest हमारा number क्या होगा, 9 होगा, and the lowest will be 62. okay, so 62 है, इसका मतलब रैंक का lowest observation जो है उसको कितना smallest rank मिला, that is 1. so 1 to 9 या 1 to आगे हम लोग कितना भी उसको रैंकिंग दे सकते हैं. ओके, नाउ मेक अ डिफरेंस ऑफ दिस R1 एंड R2. नाउ डिफरेंस निकालना है, दैट इज R1 माइनस R2. अब यहां से तो सिंपल चीज है,
isn't it? जो हम लोगों के मैथमेटिक्स के रूल्स है उसी हिसाब से हम लोग जाएंगे, दैट इज व्हाट द साइन ऑफ द हाईएस्ट नंबर हैज, तो वो उसके आंसर को भी वही साइन मिल जाएगा. सो 4 - 6 इज इक्वल टू -2, 7 - 9 इज इक्वल टू -2, 9 - 7 +2 आ गया. कैसे? एग्जैक्टली 9 पहले है, -7 है, तो बड़े नंबर का साइन जो है वो हमारे आंसर को आ गया. नाउ अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिफरेंस कॉलम को पूरी तरह से फाइंड आउट कर लिया. नाउ in the next step what we have to do, we have to make a square of this difference column. So वो आ गया हमारा d square. Now -2 into -2 is equal to +4. ये हम लोगों ने कितनी बार सीखा है, कितनी बार कहा है इसके बारे में, isn't it? So जितने भी हमारे पास numbers है, if the numbers are same at the time of multiplication, whether we are going to make a square of it or we are just multiplying these two numbers, तो definitely अगर सेम नंबर्स है तो वो नंबर के आंसर जो आते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव आते हैं. क्यूब में जाते हैं मतलब इवन नंबर्स आते हैं तो पॉजिटिव आएंगे, ऑड नंबर्स आते हैं, ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो डेफिनेटली वो माइनस में जाता है, इजंट इट? लेकिन अगर वो माइनस साइन है उस नंबर को और ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो वो माइनस में जाएगा, लेकिन अगर प्लस का साइन है तो वो प्लस का ही साइन रहेगा. मतलब इवन नंबर में हमेशा ही आंसर प्लस में आएगा और ऑड नंबर में हमेशा ही आंसर जो साइन उसका है वही साइन के साथ आएगा. फाइन. नाउ डी स्क्वायर कॉलम को हम लोगों ने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लिया और उसका समेशन हमें मिला, दैट इज 40. ओके, सारे स्क्वायर कर रहे हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स है तो इसका नंबर भी आ गया 40 जो पॉजिटिव है. ओके, समेशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40. Now just put the all values into the formula. Formula is what? R1 R is equal to 1 minus 6 summation d square upon n का cube minus n. Now put the values. 1 अपनी जगह, 6 अपनी जगह, summation d square that is 40 वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया. n का क्यूब माने number of pairs का क्यूब, that is 9 का क्यूब निकालना है n minus 9. Now again put the values. Okay, simplify the values. 6 into 40 that is 240. 9 का क्यूब आएगा 729 minus 9. So answer will be 240 minus 240 divided by 720. So what is the equation now? R is equal to 1 minus 240 divided by 720. Make a simplify. कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन इसका? 720 into 1, इन दोनों का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन. ओके, 720 into 1 मल्टीप्लीकेशन किया एंड नाउ वॉट एवर द आंसर इज उसमें से हम न्यूमरेटर की वैल्यू को माइनस कर देंगे. वाई? बिकॉज यहाँ का साइन माइनस का है. ओके, इसको हम लोग कलर चेंज करते हुए बताएंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए. यहाँ का साइन क्या है? माइनस है. इसके लिए हम डिनोमिनेटर को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको माइनस करेंगे न्यूमरेटर, उसमें से माइनस करेंगे न्यूमरेटर क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है. देन द आंसर विल बी, सिंप्लीफाइड आंसर विल बी r is equal to 480 divided by 720. Then make it again make it a simple one, that is plus 0.667. Why it is 0? Because 720 ये जो नंबर है ये नंबर का साइन है प्लस का और उसमें से माइनस कर रहे हैं 480. तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है तो बड़े नंबर का साइन हम लोग आंसर को देंगे, दैट इज प्लस 0.667. So approximately r is equal to what? 0.67. ओके, जब हमारे पास रैंक नहीं थी हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशन किया. व्हेन वी आर हैविंग द रैंक्स हम लोगों को करना क्या है? यहाँ पे दो जजमेंट्स दिए हैं, जज 1 एंड जज 2 के जजमेंट्स हैं और इस जजमेंट को इस ऑब्जर्वेशन के साथ हमारे सामने रखा गया है. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू आवर रूल
या फिर अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हम इसका टैबुलेशन फॉर्म बनाएंगे। कैसे? R1 एंड R2 ये दो कॉलम्स बन गए, हम लोगों को रैंक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रैंक्स ऑलरेडी दिए गए हैं, वो अपनी अपनी पोजीशन पे है। वी आर जस्ट need to find out the difference between R1 and R2। तो उस हिसाब से हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट किया। डिफरेंस फाइंड आउट करना दैट इज सबट्रैक्ट करो, R1 से R2 को माइनस कर दो। ओके, ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस में 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7, 7 माइनस 3 इज प्लस 4। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया एंड इन द नेक्स्ट स्टेप जस्ट मेक द स्क्वायर ऑफ दैट डिफरेंस। माइनस 3 इंटू माइनस 3 दैट इज प्लस 9, माइनस 7 इंटू माइनस 7 दैट इज 49। और इस तरह से हम लोगों ने इस डी स्क्वायर कॉलम को पूरी तरह से कर लिया और उसका समेशन निकाला दैट इज 182। Now put the values into the formula. R1 is equal to 1 minus 6 summation d square upon n cube minus n. So 6 into 182, 10 का क्यूब minus 10 और ये पूरे फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करो। सो सिंप्लीफिकेशन में आएगा 1 minus 1092 divided by 1000 minus 10. Now again make it a simple form. 1 minus 1092 divided by 990. So answer will be 990 into 1 minus 1092. तो बड़ा नंबर कौन सा है? 1092 है। सो उसका आंसर उसका साइन हमें हमारे आंसर को मिला दैट इज माइनस, और इसको हम लोगों ने और सिंप्लीफाई किया। सो आंसर विल बी R इज इक्वल टू माइनस 0.103। Okay, so students, I hope you all are getting what actually in this peer rank method is। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद में भी आपको कहीं क्वेरी है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है, सो यू मे पिंग मी ऑन माय पर्सनल विंडो या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आपको जो नहीं समझा है। आई डू मार्क ऑन दैट कमेंट और आपको जो भी आपको असिस्टेंस की जरूरत लगेगी मेरी, डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके, तो आपको सच में ये समझ में आया है या नहीं, इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फाइन, कैसे करेंगे? इन क्वेश्चंस के साथ करेंगे। सो ये है आपके लिए होमवर्क। तीन ऑब्जर्वेशंस मैंने आपको दिए हैं व्हेन द रैंक्स आर नॉट गिवन, और 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने दिए हैं सॉरी व्हेन द रैंक्स आर गिवन। सॉरी, ये कॉपी पेस्ट हो गया। ओके, व्हेन रैंक्स आर गिवन 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं। व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आप लोगों को ये दोनों स्लाइड्स के तीनों क्वेश्चंस, दोनों केसेस के तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कल तक आप इसे सॉल्व करिए और आगे हम नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।